Hello everyone, you guys asked for it. Back by public demand. Challenger series का second round is here. Before you move ahead with the solution video of this, please do not forget to go and try the set on your own first. खुद से पहले try करिए, पता करिए if you do have it in you to solve this. Yeah. Also people who have successfully completed round 1 of this, cheers to you. जिनका नहीं हुआ, don't worry about it. It's no biggie. Try doing it again, probably watch the video solution and try solving the set on your own, right? So that way what happens is आपका approach जो है by the basics, by the foundation of it change हो जाता है. Yeah. So I hope you guys have solved the second round of this challenger series. आ जाइए साथ मिलके इसे अब साथ में solve करते हैं. My name is Amit Surana. For people who are not aware of it, I am your LRDI expert and this is round 2. Today's agenda, like usual, is going to be simple. We are going to solve the second round, the second set of the LRDI Challenger series to know who could be LRDI ka champion, right? The name of the second set here is called Saving Scheme. This is a very simple yet complex in its own way. Yeah, this is a Venn diagram set. And it's not your usual 3 set or 2 set Venn diagram. This has 4 sets in it, right? So a 4 set Venn diagram. I hope you guys got a chance to read the set. Very interesting, very calculative based. Yes, calculation based है, but at the same time इसमें थोड़ा सा जो है logic लगाना भी है, right? So here we have, yes, I hope let's go ahead and read the question first. ठीक है? So Air Pitara 4,000 employees. So we have a number here. 4,000 employee airline company asked its employee to select at least one of the 3 saving schemes. So we have 3 saving scheme here: FD, PPF, and NPS. Okay. So far it looks like a 3 set Venn diagram, but let's read ahead. However, it later realized that a tenth is basically what? 1/10. Okay. 1/10. 1/10. Okay. So 1/10 or 10% of its employees were not eligible for any of the 3 saving schemes as their salary was below the required limit. So apart from the 3, FD, PPF and NPS, there are about 10% of the employees, that is 10% of 4,400 employees जो इन तीनों schemes में नहीं आ पाए. Okay. Air Pitara introduced a group insurance, a GI, in their saving schemes as an effort to help the employees. So these employees जो 400 लोग हैं जिन्हें FD, PPF और NPS का फायदा नहीं उठा पाए, वो उनके लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया. बट लेटर रियलाइज हुआ कि 400 के बदले 860 एम्प्लॉइज हैड ऑप्टेड फॉर इट. ठीक है, तो 400 तो है, 400 तो है, इन 400 के अलावा 860, सो इन 400 को इंक्लूड करते हुए 860 एम्प्लॉइज हैड ऑप्टेड फॉर द GI. मतलब क्या, 860 में से 400 जो है these are going to be people who could not apply for GI, could not apply for FD, PPF or NPS. मतलब ये 400 जो हैं these are only GI. Yes, and the remaining 460 people will have more than one or more than 2 in fact. GI के साथ या तो FD या PPF या NPS या उनसे भी ज़्यादा. So there could be 2 saving schemes or 3 saving schemes or 4 saving schemes and so on. ठीक है. So that being said, आगे कुछ डेटा दिया हुआ है, तो अब यहां पे पता चल गया हमें कि this is no longer a 3 set Venn diagram, it's a 4 set Venn diagram. Yes, यहां पे 4 set बन रहे. तो 4 set Venn diagram बनाना है हमें. Before we move on to the data, ये पूरा डेटा दिया हुआ है regarding what is what and कौन से एरिया में कितना डेटा आ रहा है. That being said, let's move on. Let's have a look at this. There are 5 questions to it. 5 questions में 1, 2, 3 TITA है और 2 MCQ है. All of it are talking about NPS and GI only. How many employees opted for at least 2 but less than 3 saving schemes? What is the difference between number of employees who had opted for exactly 1 saving schemes and that exactly 3 saving schemes? So यहाँ पे basically क्या हो रहा है कि we have to calculate individual values so that we could go ahead and answer this. ठीक है. Question number 4 भी क्या बोल रहा है कि at most
3 क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज हु हैड ऑप्टेड फॉर जीआई, ऑप्टेड फॉर द ग्रुप इंश्योरेंस, ऑल्सो ऑप्टेड फॉर एनपीएस एंड पीपीएफ, राइट। सो हमें इंडिविजुअल वैल्यूज की जरूरत है फॉर विच विल नीड द वेन डायग्राम, है ना। तो हमें वेन डायग्राम बनाना है। वी नो द आउटर मोस्ट वैल्यू टू बी 4000, ये होगा अपना यूनियन, ठीक है, पीपीएफ यूनियन, एफडी यूनियन, एनपीएस यूनियन, जीआई, है ना, चारों सेट का यूनियन या इन दिस केस यूनिवर्सल सेट इज 4000. Cool. So how are we going to make the Venn diagram? You can go with the circular Venn diagram, but the problem is यहाँ पे मैं बोर्ड पे सर्कल वाला बना दूंगा अच्छे से, राइट, बिकॉज मैं भी बना नहीं रहा हूँ, आई एम ऑल्सो टेकिंग सर्कल का इमेज लेके लगा के मैं अरेंज कर रहा हूँ, सो दैट्स गोइंग टू बी इजी फॉर मी, बट फॉर यू इट्स गोइंग टू गेट डिफिकल्ट इन द टेस्ट पेपर, क्योंकि जब आप सर्कल बनाएंगे, वन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सर्कल हैज टू बी क्लीन इनफ, जो कि ये भी नहीं है, एंड उसके बाद जब आप इंट्रिंसिक डेटा जाओगे, सो दिस यहां तक ठीक है, 3 तक ठीक है, बट फिर 4 तक कंफ्यूजन ये होगा कि कहां पे आएगा, राइट, विच वन इज टू बी इंक्लूडेड, विच वन इज टू बी नॉट, कौन सा लाइन, कौन सा एरिया, कौन से सर्कल के लिए, दिस बिकम्स टू कंफ्यूजिंग. सो टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस, द बेस्ट वे टू डील विद अ 4 सेट वेन डायग्राम, 4 सेट वेन डायग्राम ड्रॉ करने का सबसे इजी तरीका, आई मीन कंपैरेटिवली इजी तरीका, is going to go with either triangular rectangle जिनके एंड में ट्रायंगल आता है, या फिर go with a circular rectangle, है ना, मतलब ऐसा. So this entire set is FD, ये पूरा सेट जो है, this full set is FD, मतलब these are the people who selected FD, not only FD, ठीक है. तो अब इसमें if I want to bring in the next set, that is say PPF, तो कैसे रहेगा, like this. So what does this mean? ये जो green वाला set है, this is full PPF, पूरा PPF. Now if I want to talk about only PPF, तो फिर ये वाला part होगा, except for the intersection. So do you see there's an intersection here? यहाँ पे एक intersection बन रहा है. What is this intersection? FD and PPF, है ना? Intersection of FD and PPF. Moving on. Now what about the third one? If I draw the third set here, यहाँ पे अगर मैं third set बनाऊंगा, तो दिक्कत ये होगा कि FD और ये थर्ड सेट से NPS, FD और NPS का इंटरसेक्शन कैसे बताएंगे, बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स, है ना. सो नाउ क्योंकि इंडिविजुअल इंटरसेक्शंस भी है, FD एंड NPS का भी इंटरसेक्शन है, PPF एंड NPS का भी इंटरसेक्शन है, फिर GI का भी सेम होगा. सो जस्ट लाइक हाउ वी ड्रू दीज टू, हम ऐसे ही ये दो भी बनाएंगे. सो ये रहा NPS का, दिस वे हमारे पास FD और NPS का भी इंटरसेक्शन हो रहा है, PPF और NPS का भी इंटरसेक्शन हो रहा है, इस इंटरसेक्शन का भी इसके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट. एंड देन द फोर्थ सेट वुड बी योर GI, दिस रेड सेट, ये जो है दिस इज योर GI. सो इसके साथ नाउ इफ यू हैव अ लुक एट दिस, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू कि हर सेट, हर एवरी पार्ट ऑफ इट इज डिनोटेड बाय व्हाट. तो ये जो है दिस इज ओनली FD. तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल रहा हूं, पुटिंग ब्रैकेट्स टू शो दैट इट इज इंक्लूसिव. FD ऑल इंक्लूसिव, मतलब everything that is related to FD only, FD and PPF only, FD and NPS only, FD and GI only, FD and PPF and NPS, FD, PPF and GI, FD, NPS and GI and all 4. तो ये सब कुछ, all of this, ये जो भी इसमें आ रहा है, देखो ये वाले पार्ट में जो भी आ रहा है, I am going to call it as FD inclusive, right? Because I don't want to end up writing only every time. फिर ये हमें कंफ्यूज करेगा, है ना. सो दिस इज कॉल्ड FD इंक्लूसिव, ये PPF इंक्लूसिव, NPS इंक्लूसिव एंड GI इंक्लूसिव, राइट. नाउ इफ यू गो विद स्पेसिफिक सेक्शंस, इंडिविजुअल सेक्शंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. सो ये क्या है, दिस इज FD ओनली, ये सिर्फ FD है, FD ओनली. मैं यहाँ पे ओनली लिख रहा हूँ टू जस्ट टू एक्सप्लेन, बट वी विल नॉट बी रिपीटिंग दिस ओनली वाला हैबिट, ठीक है. सो FD ओनली, ऑल ऑफ दिस इज FD ओनली, राइट. फिर ये क्या हो जाएगा, दिस इज PPF ओनली. ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, दिस विल बिकम NPS ओनली. यहां पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, दिस इज GI ओनली, राइट. इंडिविजुअल सेट बन रहे हैं यहां पे. मूविंग अहेड, लुक एट दिस, यहां पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, किसका किसका, FD का एंड PPF का इंटरसेक्शन हो रहा है ना. FD एंड PPF का इंटरसेक्शन हो रहा है, बट अंडरस्टैंड दिस इज ओनली FD एंड PPF, है ना. इसमें NPS नहीं है, इसमें GI नहीं है.
सेम वे इन दोनों के बीच में देखो, एनपीएस और जीआई के बीच में एनपीएस एंड जीआई हो रहा है, नन अदर, एफडी नहीं हो रहा है, पीपीएफ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये दो हो रहा है यहां पे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, यहां पे एफडी हो रहा है, यस। यहां पे पीपीएफ हो रहा है, नहीं। यहां पे एनपीएस हो रहा है, हाँ। सो दिस इज एफडी एंड एनपीएस, या सेम वे। व्हाट अबाउट दिस, दिस अगेन इज अ इंटरसेक्शन ऑफ जस्ट टू, कौन सा, पीपीएफ एंड एनपीएस, यस। व्हाट अबाउट दिस, यहां पे एफडी है, हाँ है। क्या यहां पे पीपीएफ है, नहीं। एनपीएस है, नहीं, सिर्फ जीआई है। सेम वे यहां पे क्या हो रहा है, पीपीएफ एंड जीआई, यस। सो ये सारे हो गए, ये सारे हो गए एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली एफडी एंड पीपीएफ, एग्जैक्टली एफडी एंड एनपीएस, एग्जैक्टली एफडी एंड जीआई, एग्जैक्टली पीपीएफ एंड एनपीएस, एग्जैक्टली पीपीएफ एंड जीआई, एग्जैक्टली एनपीएस एंड जीआई, राइट। एग्जैक्टली 2 का हो गया। नाउ लेट्स गो टू एग्जैक्टली 3, जहां पे 3 सेट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो एफडी एंड पीपीएफ मेरे को पता है, ये पूरा जो इंटरसेक्शन है, ये पूरे में एफडी एंड पीपीएफ हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, एफडी हो रहा है, पीपीएफ हो रहा है, एंड एक और हो रहा है, वो क्या है, एनपीएस। सेम वे यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। चलो पहले इसका खत्म करते हैं, एफडी एंड पीपीएफ का खत्म करते हैं, ठीक है। सो सेम वे यहां पे क्या हो रहा है, एफडी हो रहा है, जी हाँ। पीपीएफ हो रहा है, यस। एंड क्या हो रहा है, जीआई हो रहा है, यस। सेम वे हियर, नाउ लुक एट दिस, यहां पे क्या हो रहा है, एफडी हो रहा है, यस। क्या यहां पे पीपीएफ हो रहा है, नहीं। यहां पे एनपीएस हो रहा है, यस। एंड क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, जीआई भी हो रहा है, देखो दिस इज जीआई, या जस्ट लाइक दैट। हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पे एफडी हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहां पे पीपीएफ हो रहा है, यस। यहां पे एनपीएस हो रहा है, यस। यहां पे जीआई हो रहा है, यस। तो ये हो गए एग्जैक्टली 3, है ना, एग्जैक्टली 3 सेविंग स्कीम्स। कौन से, एफडी पीपीएफ एनपीएस, एफडी एनपीएस जीआई, पीपीएफ एनपीएस जीआई, एफडी पीपीएफ जीआई, यस। एग्जैक्टली 3 भी हो गया। नाउ लास्ट थिंग, एग्जैक्टली 4, चारों का कॉम्बिनेशन जो यहां पे हो रहा है। ऑल द सेट्स आर इंटरसेक्टिंग हियर। ये देखो, ये वाला पार्ट इज अंडर एफडी, इट इज अंडर पीपीएफ, it is under NPS, it is also under GI. So this is going to be all the 4, FD, PPF, NPS and GI. Yes. So I hope this is understood. तो ये आपको थोड़ा सा easy कर देगा to draw on paper, क्योंकि यहाँ पे मैं circles बना के बता दूंगा, but it will become very difficult for you to use those circles in the test, है ना। ये this is more organized and you know that this is going to act like a table, है ना, 3x3 टेबल जैसे एक्ट कर रहा है ये। आई होप दैट्स क्लियर। एंड आई एम यूजिंग राउंडेड टॉप्स, मैं यहाँ पे राउंडेड टॉप्स यूज कर रहा हूँ। कई बार आप इमेजेस में देखोगे तो ट्रायंगुलर टॉप्स होंगे या स्क्वायर भी होंगे, मतलब स्ट्रेट टॉप्स भी होंगे, बट आई डू नॉट विश फॉर यू टू यूज अ स्ट्रेट टॉप इज वन थिंग, बिकॉज ये जो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो आपको दिखेगा नहीं उसमें। Number 2, the issue is being able to differentiate between FD only, FD and PPF and PPF. मेरे पास colors है, आपके पास colors नहीं होगा, right? You will be given a pen of only one color. तो फिर वहां पे you have to be very careful in order to use it, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें डेटा क्या पता है from the question, एक चीज total 4000 है, you can draw a box around it if you want. Total is 4000, this is something that we know. ये वाला पार्ट हो गया, बाकी का हमने पढ़ लिया। यस, विच पार्ट टू वी गो फॉर हियर। हाउएवर इट लेटर रियलाइज दैट अ 1/10 जो स्टूडेंट्स है, सॉरी स्टूडेंट्स बोल रहा हूं यहाँ पे, एम्प्लॉइज हैं, 1/10 एम्प्लॉइज हैं, वो एफडी नहीं है, पीपीएफ नहीं है, एनपीएस नहीं है। तो उनके पास एक ही तरीका है टू मेक एनी सेविंग्स इज यूजिंग जीआई। सो दिस 400, 10%, 1/10 is 10% of 4000, that is 400. These 400 people are what? People who can opt only for GI, है ना, GI only या only GI। तो GI only ये रहा, यहां पे होंगे 400 एम्प्लॉइज, या हाउएवर टोटल ओवरऑल GI कितने लोगों ने ऑप्ट किया था, यहां पे क्या दिया हुआ है,
which later 860 employees had opted for. So GI जो है overall is 860, only GI is 400. These are the three pieces of information that we get from this whole paragraph. सही है? Yeah, perfect. आगे बढ़ते हैं. So this information is sorted. We've also understood के कौन सा which part of the set is for which part. Okay? ये बहुत जरूरी है, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. Yeah, so we have 4000 to the total, 860 overall GI, only GI is 400. ठीक है, I hope this is visible, वरना मैं थोड़ा I'll use a brighter color. 400, okay? चलो, this being done, आगे बढ़ते हैं अब. So for our next pieces of information, you have to go through the entire list. So 9 हमारे पास clues हैं. We'll go with the order, right? We'll go with not the order in which they've been given to us, but in the order in which we want the data to be placed. So सबसे पहले पहला clue, first clue says each employee can opt for multiple saving schemes. तो ये possible है कि कोई एक employee एक से ज़्यादा, so intersections are possible. ये पूरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कैन ऑप्ट फॉर मल्टीपल सेविंग स्कीम्स का मतलब क्या है कि इंटरसेक्शंस पॉसिबल है, इंटरसेक्शंस आर पॉसिबल. ठीक है, बट एन एम्प्लॉय कैन नॉट ऑप्ट अ सेविंग स्कीम्स मोर देन वन. दैट इज अंडरस्टूड. अगर एक बार किसी बंदे ने एनपीएस सेलेक्ट किया तो वो दोबारा एनपीएस नहीं सेलेक्ट कर सकता. 10 बार भी वो क्लिक कर दे फिर भी उसका एक ही बार एनपीएस में ऑप्ट आएगा. ठीक है, that applies for any and most surveys that you take. चलो हो गया. Last point, all employees have opted for at least one of the saving schemes. This is very important. All employees have opted for at least one of the saving schemes. All employees. मतलब क्या? जो N होता है, N means what? Null. Neither FD nor PPF nor NPS nor GI. कुछ भी select नहीं किया, वैसे लोग कोई है नहीं है. N is 0. This is very important for our own सैनिटी, है ना. ये बहुत जरूरी है पता होना कि कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसने एफडी भी नहीं सेलेक्ट किया, पीपीएफ भी नहीं सेलेक्ट किया, एनपीएस भी नहीं सेलेक्ट किया और जीआई भी नहीं सेलेक्ट किया. ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, सो पॉइंट 1 वेरी यूजफुल, गिव अस वेरी गुड क्लैरिटी ऑन द एन पार्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो दिस एन, इफ इट इज कंफ्यूजिंग फॉर यू, इफ यू यूज दिस छोटा एन फॉर नंबर ऑफ और समथिंग, तो कैपिटल एन लगा लो. कैपिटल एन इज व्हाट? नीदर. ठीक है, लेट्स गो फॉर फिफ्थ पॉइंट नाउ. फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? Air Pitara realized that not even one employee had opted for all 4 saving schemes. Whatever. So what are they saying? All 4 saving schemes. All 4 कौन सा है? This part, right? यहाँ पे क्या क्या है? We have FD, we have PPF, we have NPS, and we also have GI. This is sadly 0. All four saving schemes select करने वाले कितने लोग हैं? 0, 0. या सैड बट यूज करना पड़ा हमें हियर, सो दैट्स डन. पॉइंट नंबर 8 एक दिया है, वी बीन गिवन पॉइंट नंबर 8 हियर. सो पॉइंट नंबर 5 वेरी यूजफुल अगेन. पॉइंट नंबर 8 says 1680 employees had opted for FD. Now should it be here 1680? does this make sense? नहीं. क्यों? ये क्या है? Only FD. यस, सिर्फ FD. ऐसा नहीं बोला है ना कि 1680 ने सिर्फ FD सेलेक्ट किया, PPF नहीं किया, NPS नहीं किया, GI नहीं किया, ऐसा नहीं बोला. सो व्हाट डज दिस मीन कि ओवरऑल FD, पूरा FD इंक्लूसिव इज 1680. सही है, चलो ब्यूटिफुल. पॉइंट नंबर 9 क्या बोल रहा है? इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑप्टेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑप्टेड फॉर PPF एंड फॉर NPS. PPF NPS जो है वो इक्वल है बोल रहे, ऑल इंक्लूसिव, ओनली नहीं लिखा है ना. सो PPF इंक्लूसिव इज द सेम एज NPS इंक्लूसिव, विच इज इक्वल टू 43.5% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज. ये क्या है? 43.5% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज. कितना है? 4000. सो ये परसेंटेज में है. आई थिंक इट्स बेटर इफ वी कन्वर्ट इट इनटू एक्चुअल डेटा, एक्चुअल वैल्यू. सो ये होगा 43.5 by 100% इंटू 4000. सो 2 0 कैंसल, 1 0 यहाँ पे. दिस इज 435 इंटू 4 विच इज 1600. 4 into 400 1600.
plus 140. So this is going to be 1740. Is this correct? 435, 870, 70, 70, 140, 8, 8, 16. Yeah, 1740. तो ये PPF inclusive is 1740. NPS inclusive is 1740. ठीक है? So now I think we have individual values. FD inclusive कितना, PPF inclusive कितना, NPS inclusive कितना, GI inclusive कितना. टोटल 4000 है. यूनिवर्सल सेट, नल सेट या नील, नीदर इज 0. ऑल 4 इज ऑल्सो 0. यस. सो 0.1, 5, 8 एंड 9 से हमें ये डेटा मिल रहा है. वाई एम आई गोइंग इन दिस ऑर्डर? हम ये ऑर्डर से क्यों नहीं जा रहे जिस ऑर्डर में क्वेश्चन से आया? बिकॉज समटाइम्स सम डेटा कुड बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग अगर हम वो प्रॉपर ऑर्डर नहीं फॉलो करते हैं ना. तो हम पहले इंक्लूसिव का डेटा लगा रहे हैं, फिर उसके बाद विल गो टू the rest. So from the first few points हमने ये निकाल लिया. अब point number 2 देखते हैं. Of the total 18.5% employees opted for both FD and PPF. So we have to be very careful. FD भी select किया है and PPF भी select किया है, but जरूरी नहीं है कि सिर्फ FD and PPF select किया, क्योंकि only नहीं दिया हुआ है. So I'm going to use the term inclusive here. ठीक है, क्योंकि बार बार ओनली लगाने से थोड़ा एक्स्ट्रा काम बढ़ रहा है. सो आई एम यूजिंग दिस सिंबल मेकिंग इट इजी. एफडी एंड पीपीएफ ऑल इंक्लूसिव इज व्हाट? 18.5%. सो 18.5% का मतलब है बाय 100 इंटू 4000, है ना. सो दैट्स 2 zeros गॉन, क्योंकि ऑफ द टोटल बोला है. सो 185 इंटू 4 विच इज गोइंग टू बी so that's 700, 740, है ना. 180, 18.5 double is 37, 37 double is 74, so this is 740. या अगर आपको दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन में, use a calculator, get it over with, है ना. so 18.5 into 40 is 740. done. चलो, so 740 is what? FD and PPF inclusive. so FD and PPF inclusive मतलब ये पूरा पार्ट, है ना, ये पूरा पार्ट, this entire thing, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा पार्ट, ये पूरा है FD एंड PPF. सो दिस इज हाउ मच? 740 बोला है इन्होंने. और कुछ बोला है आगे, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैड ऑप्टेड फॉर NPS ओनली. सो NPS ओनली का भी ये सेम है 740, राइट. सो NPS ओनली ये होगा, दिस इज ऑल्सो 740. ये 740, ये भी 740. पॉइंट नंबर 2 वेरी हेल्पफुल, गिविंग अस ओनली NPS का वैल्यू एंड FD एंड PPF का इंक्लूसिव इंटरसेक्शन, है ना. चलो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं. 220 एम्प्लॉइज हैड ऑप्टेड फॉर ओनली PPF एंड GI. सो ओनली PPF एंड GI, ओनली PPF एंड GI किधर है? यहां पे ये भी होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी इट. ओनली PPF एंड GI इज हाउ मच? 220. ये दिख रहा है ना? यस, ओनली PPF. सो ये देखो, ये वाला पूरा सेट है PPF, बट ये ओनली PPF था, ये ओनली PPF था, एंड ये GI के साथ. यस, सो दिस इज 220. दिस इज ऑल्सो डन. 60 out of 220 employees who had opted for PPF and NPS. तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं. Let's break it down. ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं. 220 employees who had opted for PPF and NPS but not FD. This is one part. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि 220 employees जो हैं वो PPF and NPS but not FD. मतलब PPF and NPS, PPF and NPS इंक्लूसिव बट FD को निकाल के, बट GI को नहीं निकाला है. नॉट FD बोला है, नॉट GI नहीं बोला. सो PPF एंड NPS एंड GI. आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना. PPF भी है, NPS भी है, GI भी है. सो वी FD को छोड़ के बाकी तीनों है. PPF भी है, NPS भी है एंड GI भी है. तो ये पूरा, ये जो है, ये अकेला नहीं, नॉट जस्ट दिस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. जहां पर भी PPF एंड NPS एंड GI है, ऑल ऑफ दैट वुड बी अकाउंटेड फॉर. ठीक है, सो उसमें से क्या बोल रहे हैं कि 60, उसमें से 60 जो है
had opted for the GI, also opted for the GI. So this part is 60. This part is 60. PPF and NPS and GI ये जो है ये 60 है. But the part जहां पे PPF and NPS inclusive है, PPF and NPS inclusive but not PF, very FD, very carefully given, not FD. मतलब क्या होगा कि PPF कहां पर है, ये रहा, NPS कहां पर है, ये रहा. सो PPF एंड NPS का जो इंटरसेक्शन होगा, PPF एंड NPS का जो इंटरसेक्शन होगा एक्सक्लूडिंग FD, तो ये FD छोड़ने के बाद, जो टोटल होगा वो होगा 220 दे आर सेइंग. ठीक है, तो इस 220 वाले पार्ट को लेट्स कीप इट, क्योंकि यहां पे थोड़ा यू विल हैव टू ब्रेक इट डाउन, बिकॉज PPF ओनली नहीं होगा, PPF एंड NPS होगा, ये 60 होगा. सो दीज टू इंक्लूसिव बेसिकली, ये और ये इंक्लूसिव है ना, दीज टू इंक्लूसिव इज 220. एम आई राइट? यस, ये और ये मिला के विल गेट 220. लेट्स कीप दिस फॉर नाउ. आगे बढ़ते हैं. ये 220 वाला हमने रखा अभी तक. ठीक है. ऑल्सो नन ऑफ द एम्प्लॉयज हु हैड ऑप्टेड फॉर FD ऑप्टेड फॉर GI. दिस इज वेरी गिवन इन अ डिफरेंट वे. पीपल हु हैड ऑप्टेड फॉर FD एंड GI. तो जो लोग भी FD के लिए ऑप्ट किए थे वो GI के लिए ऑप्ट नहीं किए थे. FD के लिए जो ऑप्ट किए थे वो GI के लिए ऑप्ट नहीं किए थे. मतलब क्या, FD एंड GI का इंटरसेक्शन में ये भी आता है, FD एंड GI के इंटरसेक्शन में ये भी आता है, FD एंड GI के इंटरसेक्शन में ये भी आता है. तो दीज 4 वैल्यूज आर 0. FD एंड GI का इंटरसेक्शन, FD एंड GI, FD एंड GI, FD एंड GI. इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे PPF है, NPS है, बट अगर किसी ने FD लिया तो उसने PI की तरफ देखा भी नहीं, GI की तरफ देखा भी नहीं है. इज द सिनेरियो. ठीक है, तो ये सारे 0 होंगे. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. 6th पॉइंट इज डन. 7th पॉइंट, 14% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज हैड ऑप्टेड फॉर ओनली PPF. वेरी गुड. 14%, so 14 into 40 is what we'll have to do. 14 into 40 कितना, 560. So 560 is what, only PPF. Very helpful. Moving on. 8% of the total employees had opted for both FD and NPS only. FD and NPS only. तो ये रहा FD and NPS only. This is what, 8%. So 8% of 4000 is 8 into 40, that is 320 है ना. तो ये आ जाएगा 320. Done. This is also good. अब अपने पास बचे हैं कुछ, we are left with some pieces of information बाकी है ना. Yeah, we have 1 2 3 4 and 5 missing information. एक तो यहाँ पे आ गया 220. So ये पूरा 220 है. Please understand. 60 out of 220 employees opted for PPF and NPS but not FD. तो PPF है इसमें, जी हाँ. NPS है इसमें, जी हाँ. FD है, नहीं है. PPF है, हाँ. NPS है, नहीं. FD, सॉरी, PPF है, NPS है, FD नहीं है. So with these two it is total 220. उसमें से अगर ये 60 है, GI also, अगर ये 60 है तो ये बाकी का 160 होगा, है ना. ये दोनों मिला के 220 है. लेट मी राइट दिस समवेयर ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. यूज अ डिफरेंट कलर्ड पेन. ये दोनों मिला के हैज टू बी 220 फॉर यू. ओके, ठीक है. उसमें से ये 60 जो है हैव चोजन फॉर GI ऑल्सो. सो विद दिस वी आर लेफ्ट विथ, वी हैव यूज्ड अप ऑल द इंफॉर्मेशन. अब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स बच गए. उन वेरिएबल्स को अपन नाम दे देते हैं. दिस इज A, B, C एंड D. ठीक है, A, B, C and D. तो now our job is to use some equations. हमें इन सब का टोटल पता है, इसका टोटल पता है, इसका टोटल पता है, इस इंडिविजुअल का टोटल पता है, पूरे NPS का टोटल पता है, पूरा GI का टोटल पता है. तो इन्हें रख के हमें ABCD की वैल्यू ढूंढनी है. ओके, दिस बीइंग सेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे सारे वैल्यूज मैंने दोबारा थोड़ा क्लियरर वे में लिख लिया.
320 ये सही था, ये 220 सही था, दिस इज ऑल्सो 220, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, 400, 740, 320, सब कुछ बराबर से मिल चुका है हमें, है ना। वी हैव ऑल द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली रिटन। अब हमें क्या करना है, अब इक्वेशंस, अब डेटा में कुछ नहीं रखा, मतलब जो हमें सेट में डेटा दिया था उसमें कुछ भी नहीं है, ये ए है, हाँ उसमें कुछ भी नहीं है, वी हैव टू गेट इट थ्रू विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ओनली, है ना। सो सबसे पहले देखो, इज देयर एनी वे वी कैन फाइंड इंडिविजुअल वेरिएबल्स का वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो विद दिस एंटायर जी आई, ये पूरा जी आई अगर मैं ऐड करता हूं, फुल जी आई इफ आई ऐड, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है डी, सो आई एम सेफ दैट वे, राइट। सो आई एम गोइंग टू ऐड अप ऑल ऑफ दीज एंड सबट्रैक्ट इट विद 860, इससे मेरे को डी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। सो ये कितना आ रहा है, 0 + 0 + 60 + 220, 60 + 220 + 400 इज 680। तो मेरे को क्या मिल रहा है कि 680 प्लस डी, है ना, ये पूरा 0 0 60 डी 0 0 220 400, 680 प्लस डी इज 860। तो इससे हमें क्या मिलेगा, डी का वैल्यू मिल जाएगा 860 माइनस 680 which is 180, let me check, 180, तो D का वैल्यू हमें मिल गया 180। यस, सेलिब्रेट करने का मौका है। एक इंडिविजुअल वेरिएबल का वैल्यू मिल गया, उसे रख के हम दूसरे का वैल्यू ढूंढेंगे ना, दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोसेस। तो ये मिल गया 180। अब देखो ये D 180 कहाँ पे यूज आ सकता है, ये पूरे में NPS का पूरा, है ना, वी कैन मेक यूज ऑफ पूरा NPS का। सो लेट्स यूज दैट, NPS का पूरा अगर मैं ऐड करूंगा क्या क्या आएगा, 320 प्लस C, सो C को छोड़ दो, 320 प्लस 160 प्लस 740 प्लस 0 प्लस 0 प्लस C प्लस 60 प्लस 180, है ना, ये पूरा मैंने ऐड किया। आई हैव एडेड दिस एंटायर थिंग टू गेट 1460 प्लस C. So 1460 plus C will give you this total 1740. Yes, इससे मेरे को C का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 1740 विच इज 280। ठीक है, तो मेरे को D मिल गया, C मिल गया, C गया 280, ये भी हो गया। अब इसको रख के क्या अपन B का वैल्यू ढूंढ सकते हैं? ऑफ कोर्स आई नो कि ये जो पार्ट है, यस, बी FD एंड PPF, इसका टोटल हमें मिला हुआ है 740, है ना। लेट्स यूज दैट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, B प्लस ये 280 प्लस 0 प्लस 0, सर 280 प्लस 0 प्लस 0 प्लस C इज इक्वल टू 740, है ना, इज इक्वल टू 740। सो दिस 740 से निकालने पे 460 आ रहा है। सो विद दिस वी हैव B का 460 एज द वैल्यू। इससे हमें B का वैल्यू मिल गया 460। दिस वी कैन यूज इस पूरे के लिए। अब पूरा FD को अगर मैं ऐड करूंगा, फुल FD को अगर अपन ऐड करेंगे तो विल गेट A का भी वैल्यू, फुल FD को ऐड करेंगे सो विल गेट A प्लस फुल FD, है ना। फुल FD कितना है, 320 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 460 प्लस 280 प्लस 0 प्लस 0, सो ये है 1060। दिस हैज टू बी इक्वल टू हाउ मच, 1680। तो A का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, दिस सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1680 एज 620। तो इससे हमें A का भी वैल्यू मिल गया 620। नाउ डू आई हैव वैल्यूज ऑफ ऑल माई वेरिएबल्स, पूरा सेट का मेरे को पता है, यस, 620 320 0 0, 460 280 0 0, 560 160 60 220 740 180 400। मेरे को ओवरऑल NPS इंक्लूसिव GI इंक्लूसिव FD इंक्लूसिव PPF का वैल्यू भी पता है। इसमें से अब मेरे को कुछ भी पूछेंगे, अपन को कुछ भी पूछेंगे, हम उसका वैल्यू ढूंढ निकालेंगे, सिंपल एज दैट, है ना। इसमें से वो कुछ भी पूछेंगे, वी कैन फिगर आउट द वैल्यू फॉर दिस। सो दिस इज आवर फाइनल बे।
हियर इट इज, ये अपना फाइनल वे, इसको रख के अब अपन चलेंगे टू आंसर द क्वेश्चंस। 620, 465, 60, 320, 280, 160, 740, 00, 60, 180, 00, 220, 400. Done? Yes. अब I think after this, after we figure this out, answering the questions is a piece of cake. बट कर ही लेते हैं, आए गए यहाँ तक तो कर ही लेते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा परसेंटेज बेस्ड है, टीटा क्वेश्चन है ये। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज, ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज, सो टोटल एम्प्लॉयज कितना है 4000, बेस में अपना 4000 रहेगा, ठीक है। हैड ऑप्टेड फॉर एनपीएस एंड द जीआई ओनली, एनपीएस एंड जीआई, एनपीएस ये रहा, जीआई ये रहा, एनपीएस एंड जीआई ये रहे, एनपीएस एंड जीआई ओनली, वरना क्या होगा, ये 160, 180, ये 60, ये 00, ये पूरा काउंट होता, बट ये जो वर्ड है ओनली, इसके कारण वी विल बी चूजिंग ओनली द नंबर 180. Yes, that's basically 18/4. But if you have issues with the calculation, calculator जिंदाबाद, यूज कर लो wherever possible. 4.5% will be the answer. बट अगर आप इसमें 4.5 टाइप करोगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? बिकॉज व्हाट इज द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्किंग, टाइप इन द क्लोजेस्ट इंटीजर। यस, तो अब बताओ 4.5 का क्लोजेस्ट क्या है? 4.5 का क्लोजेस्ट क्या है? इज इट गोइंग टू बी 5 और इज इट गोइंग टू बी 4? इंटीजर बोला है तो 5 क्लोजेस्ट है या 4 क्लोजेस्ट है? दोनों सेम ही है, ये भी 0.5 ही दूर है, ये भी 0.5 ही दूर है, तो फिर हाउ डू वी डिसाइड दिस? सिंपल, एवरी टाइम इट इज 0.5 एंड अबव। 4.5 के 4.5 से ज्यादा या इक्वल हो तो यू विल गो टू द नेक्स्ट विच इज 5। वहीं पे लेस देन 4.5 हो, 4.4, 4.49, 4.499999, बट 4.5 के एकदम पहले तक you will be going with the previous integer. Okay, this is very important. ये approximation में बहुत help करेगा। Next integer approximation है ना? So which is what? So our answer to this question is going to be 5. Mind you, theta में percentage symbol भी use करना allowed नहीं है, कोई भी symbol नहीं मिलेगा आपको। So in percentage यहीं पे बोल दिया, what percentage? 5. That's it. ठीक है? Moving on. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑफ द एम्प्लॉयज ऑप्टेड फॉर, अब यहां पे ध्यान से पढ़ने की जरूरत, एटलीस्ट 2 बट लेस देन 3. ओके, दिस साउंड्स लाइक इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स एक्चुअली नॉट, ये काफी इजी है। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 और 2 से ज्यादा, लेस देन 3 का मतलब है 3 से कम। सो बेसिकली द ओनली थिंग दैट कम्स इन इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 इज एग्जैक्टली 2। बस यही पूछा है हमसे, ठीक है। इट्स अ ट्रिकी वे। कई बार क्या होता है, व्हेन वी डोंट सी दिस लेस देन 3 केयरफुली, वी माइट कंसिडर 3 ऑल्सो, तो एग्जैक्टली 2 एंड 3 इंक्लूड कर लेंगे। 3 से कम होना चाहिए, मतलब 3 तो है नहीं, 2 और 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 ही है सिर्फ, ठीक है। सो एग्जैक्टली 2 का वैल्यू पूछा है। यस, एग्जैक्टली 2 में क्या क्या आ रहा है? एग्जैक्टली 2 में आ रहा है FD एंड NPS, FD and PPF only exactly 2 बोला, okay? NPS and PPF only, NPS and GI only, GI and PPF only, FD and GI only, right? 6 values, 1 2 3 4 5 6. So how do you know कि कितने values होंगे? How number of values, not value, उसका value क्या नहीं, number of terms कैसे होंगे, कैसे पता करते हैं? अपने पास 4 है, FD, PPF, NPS, GI, 4 में से हमें 2 का ग्रुप बनाना है। दैट्स बेसिकली 4C2। 4C2 का वैल्यू क्या है? 4 into 3 by 2 into 1 which is 6. So there are going to be 6 terms, 1 2 3 4 5 6 terms. Makes it easy for the understanding कि पता होता है कि हाँ यार इतने वैल्यूज की जरूरत है, so then you don't miss out anything, है ना, simple. So we have 460 plus 320 plus 160 plus 180 plus 220 which comes up to 1340, है ना, 1340. Do we have? Yes, option B है 1340. That's the right answer.
यहाँ पे देर आर ट्रैप आंसर्स ऑल्सो, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर आप एग्जैक्टली 3 भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज 280 एंड 60, 280 एंड 60, तो 1680 इज अ ट्रैप आंसर. ये ट्रैप आंसर है क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 एंड 3 दोनों इंक्लूड कर रहे हैं. यस, सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. लेस देन 3 में 3 नहीं आएगा, एग्जैक्टली 2 का ही वैल्यू पूछ रहे अपन से. ठीक है, so that being done, question number 2 is over. Let's go to question number 3. What is the difference between the number of employees, difference ढूंढना है किसी चीज का, of number of employees who had opted for exactly one savings, exactly one, and that for exactly 3 savings, minus exactly 3. क्योंकि ये फिजिकल वैल्यू है, नंबर ऑफ पीपल है, तो हमेशा मॉडुलस में होगा वैल्यू. ठीक है, नेगेटिव में नहीं आ सकता. डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल कैन नेवर बी नेगेटिव. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, डिफरेंस बिटवीन द वेट, डिफरेंस बिटवीन द हाइट, डिफरेंस बिटवीन मनी, डिफरेंस बिटवीन वॉट एवर, ये जो भी है नेगेटिव में नहीं लिखते अपन. ठीक है, हमेशा वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू आउट ऑफ इट. सो एग्जैक्टली 1 कौन सा है? एग्जैक्टली 1 620, 560, 740 एंड 400 है ना. ये सब है एग्जैक्टली 1. लिख लो 620 प्लस 560 प्लस 740 प्लस 400, ये पूरा है एग्जैक्टली 1 माइनस एग्जैक्टली 3. अपन ने अभी देखा था एग्जैक्टली 3 कौन सा होगा. एग्जैक्टली 3 280 प्लस 60 प्लस 0 प्लस 0 है ना. ये सब कुछ है एग्जैक्टली 3. FD PPF NPS, FD PPF GI, FD GI NPS, नहीं FD GI PPF, एंड ये होगा PPF NPS GI, राइट. सो दैट्स हाउ मच, 280 प्लस 60 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, तो लकीली दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव डिफरेंस ओनली, तो टेंशन नहीं है अपन को. दिस इज 620 प्लस 560 प्लस 740 प्लस 400, 2320. ये है एग्जैक्टली 1 माइनस 280 माइनस 60, टोटल है 1980. ये कितना है? 340. So the total is how much? 1980. This is the difference. So your answer to this question, theta question है, answer is 1980. ठीक है, very simple, very direct question. Exactly 1, exactly 3, exactly 2 हमने यहाँ पे previous question में निकाल ही लिया था, exactly 2 का value भी. So we have exactly 1, exactly 2, exactly 3 सबका value. ठीक है, let's go to the 4th question, last but one question. ये क्या बोलना चाह रहा है? Let's see. What percentage of the employees बोल दिया है, of the employees. So of the what employees नहीं पता, मतलब total employees है ना. So required में base अपना 4000 होगा, उसमें से पूछ रहे हैं had opted for at most 3 of the 4 saving schemes. At most 3. What do you mean by at most 3 guys? At most 3 का मतलब क्या है? Maximum 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 है ना. At most means maximum, so ज़्यादा से ज़्यादा 3 मतलब क्या होगा? Exactly 3 होगा इसमें, प्लस exactly 2 होगा इसमें, प्लस exactly 1 होगा इसमें. exactly 0 तो है नहीं, लिख लेता हूँ मैं, exactly 0 भी इंक्लूड होगा है ना. एग्जैक्टली 0 का वैल्यू हमें पता है क्या? पता है, विच इज 0. इन सब का इंडिविजुअल वैल्यूज पता है ना. ये भी हमने निकाला, ये भी हमने निकाला था, ये भी हमने निकाला. बट ये क्वेश्चन को इंडिविजुअली अब बैठ के ऐड करेंगे. यहाँ पे कुछ आई वांट टू ब्रिंग अप. सबसे पहले चलो इंडिविजुअली करते हैं. ठीक है, सबसे पहले अभी चालू कर दिया, इंडिविजुअली करके बताते हैं. सो वी हैव एग्जैक्टली 1 and 3 ईयर, 2320 एंड 340. 2320 ये है 2320 एंड ये है 340, और ये एग्जैक्टली 2 कितना है? एग्जैक्टली 2 इज
1340. ओके 1340. यस, तो इसे अगर आप ऐड करोगे व्हाट आर यू गेटिंग? 340 प्लस 1340 प्लस 2320, यू आर गेटिंग फुल 4000. आ रहा है समझ में? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? इफ यू वेर अ लिटिल स्मार्ट, ठीक है, इन हैंडलिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हैंडल करने में अगर अपन थोड़ा सा चालाकी दिखाते विनीत सर वाली, तो नहीं सॉरी राहुल सर वाली, तो इतना इश्यू नहीं होता यहाँ पे, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती. क्यों? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ ब्राउनी क्वेश्चन. ये दीदी हमें ब्राउनी दे रही है, थक गए होंगे एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते करते, लीजिए ब्राउनी लीजिए दे रही है दीदी, ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हेन दे से एटमोस्ट 3, जब वो बोल रहे हैं एटमोस्ट 3, सो एटमोस्ट 3 का मतलब क्या है? एटमोस्ट 3 में क्या क्या आता है? 3, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 0, राइट. तो बचा क्या? दिस इज बेसिकली व्हाट, पूरा टोटल में से एग्जैक्टली 4 को आप निकाल रहे हो. मेरे को 0 चाहिए, मेरे को 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए नहीं, 4 से ज्यादा है ही नहीं और चाहिए भी नहीं, राइट. सो टोटल में से जो नहीं चाहिए, टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड वैल्यू, इफ यू डू यू विल गेट इट. सो टोटल अपना 4000 है, हमें पता है कि एग्जैक्टली 4 का वैल्यू क्या है? 0. सो दिस हियर इटसेल्फ हमें मिल गया 4000. हेंस दिस इज अ ब्राउनी क्वेश्चन. फॉर पीपल आर वंडरिंग ये क्या है, ये ब्राउनी है, ठीक है. थोड़ा सा जूम करके देखो, दीदी ब्राउनी पकड़े हुए, चॉकलेट चिप ब्राउनी. Yeah, so the answer is 100%, which is not this, not this, not this. Option D, none of these is correct. क्योंकि correct answer क्या है? 100%. Easy. Had we thought about this a little earlier, थोड़ा जल्दी से, तो हमें ये डेटा निकालने की जरूरत नहीं है. बट वैसे ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 2 and 3 अगर हो गया, तो वही सिर्फ वैल्यूज हम रीयूज कर रहे हैं, राइट. सुपर. With this 4 questions हो गए. Let's move on to question number 5. What percentage of the employees, अब यहाँ पे you have to be very careful, ध्यान से पढ़ो. What percentage of the employees who had opted for GI, यहाँ तक है क्वेश्चन. तो बेस में 4000 जो लगा रहे हैं वो गलत है. Yes, who had opted for GI, तो GI को ऑप्ट करने वाले कितने लोग थे? 860, है ना. GI को ऑप्ट करने वाले 860. इन 860 में से कितने लोग NPS और PPF भी सेलेक्ट किए थे? मतलब वी बेसिकली वांट व्हाट, GI तो चाहिए ही, इसके साथ साथ NPS भी चाहिए, इसके साथ साथ PPF भी चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट. सो व्हाट, विच वैल्यू आर वी लुकिंग फॉर? GI and NPS and PPF, which is these 60 people. Yes, तो ये 60 डिवाइडेड बाई 860 इंटू 100, ये होगा हमारा आंसर, विच इज हाउ मच? 60 बाई 860 टाइम्स 100 कम्स अप टू 6.976. 6.976%. यहाँ पे क्या बोला है? टाइप इन द क्लोजेस्ट इंटीजर. यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. 6.9 is closer to 7. तो यहाँ पे आप क्या आंसर टाइप करेंगे? 7%? No, just 7. So answer to this is going to be 7, क्योंकि you cannot type special characters in theta, है ना. With this, all 5 questions are done. I hope you guys enjoyed this second round. जिनका successfully complete हुआ, cheers guys, way to go, super proud of you. जिनका ये नहीं हुआ और आप यहाँ पे सोल्यूशन देखने आए हैं टू अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके. आई एम स्टिल सुपर प्राउड ऑफ यू एंड आई हैव फुल बिलीफ इन यू कि राउंड 3 तक यू विल समवेयर बी देयर. या ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, चीयर्स.